Hello everyone, welcome to Manever Education. Jai Hind. My name is Yash Kumar Sampat and today we will discuss the weekly current affairs world this week, the first week of Feb 2022. Before we going to start, I want to discuss that if you are targeting this kind of the examination like the CLAT, MH, low CET 3/5 years, SLAT, DU, BHU, LSAT and many more, and if you are targeting the top law colleges in India, so don't worry, batches launched by the Manever Education where you can get the live classroom coaching, books, shortcut tricks for your examinations and many more doubt solving session where you can solve your doubts with the help of the faculty members, and you can also get the recorded videos for your future, and you can also get the topic wise test, mock tests, and you can also get the WhatsApp group where you can solve your queries and doubts with the help of the faculty members in this kind of the group. You can also get the 10,000 plus question series test for your practice test, and you can also get the mentorship program with the help of the examination mentor. And if you are looking for the classroom coaching at the Mumbai, so we have a 3 centers, Dadar, Borivali and Vasai. So what are you waiting for, guys? Book your seat now and call on 8828581454. You can visit our center also, and you can visit our website which is called the manevereducation.com/law entrance. So the first question is about the Indian women's hockey team won which position in the Asia Cup 2022. So in the Asia Cup, what is the rank of this India in 2022? So there are the 4 options over here, first, second, third and fourth. So correct answer is the थर्ड ऑप्शन. ठीक है, सो यहाँ पर भारत का तीसरे नंबर पर स्थान आया हुआ है एशिया कप 2022 के अंदर. सो देयर इज अ टीम विच इज कॉल्ड द इंडियन वुमेन हॉकी टीम. ओके, सो इंडियन वुमेन हॉकी टीम हैव वॉन ब्रॉन्ज मेडल. यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम आफ्टर बीटिंग फॉर्मर चैंपियंस चाइना. ठीक है, तो चाइना को बीट किया था हम लोगों ने, ये चीज आप लोग याद रखें. और साथ ही साथ यहाँ पर याद रखें जापान वॉन द एशिया कप टाइटल आफ्टर डिफीटिंग द साउथ कोरिया. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, which is called the rank of India in the Asia Cup 2022. India beat the China, ये चीज आप लोग याद रखें. एंड सेकंड वन, द जापान वॉन दिस एशिया कप. ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखें, एशिया कप 2022. ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री लॉन्च द हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. सो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल. एंड अवर ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल दैट इज ए क्रूज मिसाइल. ठीक है, क्रूज मिसाइल है वो हमारी. और जो हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी वो इंडिया एंड रशिया ने दोनों ने जॉइंट वेंचर कर बनाई थी. और ब्रह्मोस के अंदर इंडिया की ब्रह्मपुत्रा एंड रशिया की मॉस्कोवा. ठीक है, तो रशिया की मॉस्कोवा, उन दोनों को मिलाकर नाम बना था ब्रह्मोस. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है. सो देयर आर दी 4 ऑप्शंस ओवर हियर. विच कंट्री लॉन्च दी हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया. सो करेक्ट आंसर is the North Korea. Okay, so let us discuss about the North Korea. So North Korea has confirmed that it fired a Hwasong 12 mid-range ballistic missile. That is the first time it has tested a weapon of that size since 2017. So that is North Korea and that is South Korea. That is the capital of the North Korea, Pyongyang, and that is a portion of the China. ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखें. And Japan and South Korea detected the launch of the intermediate range ballistic missile which is called the IRBM. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है. और ये जो है विच इज 7th वेपन्स टेस्ट डन बाय द नॉर्थ कोरिया दिस मंथ. ठीक है, तो 1 महीने के अंदर उन्होंने 7 तरीके की जो मिसाइल है वो उसको टेस्ट किया है कि इन्होंने नॉर्थ कोरिया ने. ठीक है, सो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के बारे में एक स्टैटिक जीके के इंफॉर्मेशन देख लेते हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देयर इज अ सुप्रीम लीडर हुज नेम इज द किम जोंग यून एंड हिज कैपिटल प्योंगयांग. ठीक है, जो यहाँ पर इस मैप में मैंने आप लोगों को यहाँ पर
दिखाई, ठीक है। सो देयर इज अ कैपिटल ऑफ द नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया करेंसी जो है वो है नॉर्थ कोरियन वॉन। सो दैट्स इट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया which is called the GSI has approved to set up India's first geopark in which of the following states? So there are the four options over here: Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh and Telangana. So correct answer is the Madhya Pradesh, ठीक है। So for your exam point of view you have to remember this kind of the things. GSI is related to the MP, ठीक है। So let us discuss the info. The Geological Survey of India which is called the GSI, जिसका हिंदी अनुवाद होता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, has approved to set up India's first geopark at Lamhita village on the banks of the Narmada river in the Madhya Pradesh. So you have to remember this kind of the village, Lamhita village, and the India's first geopark is in the MP which is called the Madhya Pradesh. And you have to also remember this kind of the things which is called the UNESCO, ठीक है। So UNESCO के अंदर उसको अलाउ किया गया है, यानी कि उसकी लिस्ट में शामिल किया गया है। So for your exam point of view आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी याद रखना है कि उसके हेडक्वार्टर्स किधर है। So please write it down the correct आंसर इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर मुझे ये बताना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर किधर है एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूनेस्को। प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डेथ पेनल्टी इन इंडिया? सो सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेथ पेनल्टी, ठीक है। इफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गिव सम काइंड ऑफ द पेनल्टी रिगार्डिंग द डेथ, ठीक है, अगर किसी को हैंग टिल टू द डेथ ऐसा कोई पेनल्टी दिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो भारत देश के अंदर ये डेथ पेनल्टी जो है उसकी रिपोर्ट कौन अनाउंस करता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या नीति आयोग या सुप्रीम कोर्ट? सो करेक्ट आंसर इज द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के अंदर है, ठीक है। सो डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट वाज रिलीज बाय द क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एडवोकेसी ग्रुप एट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली नेम्ड प्रोजेक्ट 39A, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो 39A है एंड NLU दिल्ली का जो मोटो है या स्लोगन कह सकते हैं वो क्या है? न्यायस्तत्र प्रमाणम स्यात्, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। और 2020 के अगर मैं तुलना करूं, यानी कि इफ आई कंपेयर द 2020 फॉर रिगार्डिंग द डेथ पेनल्टी इन इंडिया, सो 2021 के अंदर 21% इंक्रीज हुआ है नेशनल डेथ पेनल्टी, ठीक है, भारत देश के अंदर 2020 की कंपैरिजन के अंदर। और मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि 2021 के अंदर जो ये आंकड़ा था 488 तक पहुंच चुका था, ठीक है। एंड ये जो है द हाईएस्ट 17 ईयर्स, ठीक है, 17 साल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा 2021 के अंदर दर्ज हुआ था 488, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। UNCITRAL, UNCITRAL seen in the news is an United Nations as an agency associated with which field, ठीक है। तो UNCITRAL कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है? चिल्ड्रन वेलफेयर के साथ, यानी कि बच्चों के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इंक्लूड हुआ है UNCITRAL, या काम करता है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग काम करता है, या इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग काम करता है, या हेरिटेज के रिगार्डिंग काम करता है, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर क्या है? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालापन, यानी कि बैंकरुप्सी, ठीक है। अगर मैं भारत देश के अंदर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता हूं इंडिया के अंदर ही, यानी कि इंडिया के अंदर ही मैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं, तो अगर सेफ हो सकता है, ठीक है। पर अगर मैं एक कंट्री से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूं तो आप लोगों को समझना होगा कि यहाँ पर सामने वाली जो पार्टी है अगर वो दिवालापन हो गई तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार होगी? सो देयर इज वन काइंड ऑफ द लॉ विच इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है UNCITRAL, तो उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल लॉ एक होता है विच इज कॉल्ड द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, जो कि 1997 में स्थापना हुई थी। इसकी इज द मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड लीगल फ्रेमवर्क ऑन द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कहा गया है, सजेशन दिया गया है कि उसमें अंदर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत भी है एंड इट हैज़ बीन एडॉप्टेड बाय द 49 कंट्रीज, ठीक है, 49 कंट्रीज के द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं।
और साथ ही साथ सिंगापुर के अंदर, यूके के अंदर, यूएस के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर और कोरिया के अंदर इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो दैट इज सम काइंड ऑफ द कमेटी रिगार्डिंग द यूएन सिट्रल। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर योर एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप लोग मुझे बताया कि यूएन सिट्रल के अंदर कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली अनाउंस विच कंट्री एज इट्स मेजर नॉन नेटो। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन विच इज कॉल्ड द हाउ मेनी मेंबर्स इन दी नाटो। कितने मेंबर्स हैं नाटो के अंदर, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है विच इज कॉल्ड दी यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली अनाउंस विच कंट्री हैज इट्स मेजर नॉन नाटो अलाई। नॉन नाटो अलाई में कौन सा कंट्री शामिल है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर बतानी है मुझे। ठीक है, सो यूएई, कतार, इजराइल, जापान, इन द फोर ऑप्शंस देयर इज अ फोर ऑप्शंस ओवर हियर। सो करेक्ट आंसर इज द कतार। ठीक है, तो कतार के जो है एक नॉन नाटो अलाई के तौर पर काम में आता है। ओके, सो देर इज अ मैप ओवर हियर विच इज को ये है हमारा प्यारा सा भारत और दैट इज अ मैप ऑफ द इंडिया। ठीक है, जो अगर भारत के अगर वेस्ट में जाते हो गुजरात के उधर, सो यहाँ पर यू कैन फाइंड आउट द कतार। ठीक है, सो यूएस प्रेसिडेंट जॉइंट बाइडन डिजिग्नेटेड अ कतार अ मेजर नॉन नाटो अलाई ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द रूलिंग लीडर ऑफ कतार एट द White House. So there is a question which is called the static GK. ठीक है, तो you have to remember this kind of the things which is called the static GK. So कोई static GK के हिसाब से आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप कतार का मैप भी देख सकते हैं, मैंने आप लोग हाँ, तो देर इज अ मैप ओवर हियर विच इज कॉल्ड द कतार मैप। अगर इंडिया के आप वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो यू कैन फाइंड इट आउट द कतार मैप। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ न्यू रामसर साइट लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया या यूटी ऑफ द इंडिया। सो देर आर द फोर ऑप्शंस ओवर हियर, हरियाणा, बिहार, गुजरात और उत्तराखंड। सो आप लोगों को मैं बता दूं कि खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों वो है गुजरात के अंदर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज इन द गुजरात। ओके, सो यहाँ पर जो दो रामसर साइट के बारे में बात की गई है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेटलैंड, जो यहाँ पर पेड़ पौधे जो रहते हैं एंड जो ब्लॉक करते हैं फ्लड्स को, सो दैट इज कॉल्ड द वेटलैंड्स। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गुजरात के अंदर है, और दूसरी जो चीज़ है वो है बाकीहारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन द यूपी लाइक द उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो इंडिया हैज a network of 49 such sites covering the 10,1093,636 hectares. ठीक है, so you have to remember these things कि खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पर लोकेटेड है, वो गुजरात के अंदर, एंड बकीहारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। सो देर इज अ पिक्चर ओवर हियर फॉर द खिजड़िया बर्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर देयर इन द बीजिंग ओलंपिक्स 2022। तो दोस्तों बीजिंग ओलंपिक्स 2022 का जो चाइना के अंदर होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है 4 फरवरी से। ठीक है, उसके अंदर कितने स्पोर्ट्स हैं, 11 स्पोर्ट्स, 13, 14 या 15। सो करेक्ट आंसर इज द 15 स्पोर्ट्स आर देयर। ठीक है, और यहाँ पर अगर फिर 15 स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ तो स्कीइंग है, बाइथलोन है, बॉब सही, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, कर्लिंग, फिगर स्केटिंग, फ्री स्टाइल स्केटिंग, आइस हॉकी, लूज, नॉर्डिक कॉम्बाइंड, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, स्केलेटन स्की, जंपिंग, स्नोबोर्ड एंड स्पीड स्केटिंग, ये 15 स्पोर्ट्स बीजिंग 2022 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट विच इज कॉल्ड द जेट। ठीक है, कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट को लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है। यूएसए, दुबई, इंडिया और रशिया। सो करेक्ट आंसर इज द दुबई। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका फोटो देख सकते हैं, इस तरीके की एक वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट रहेगी, और दुबई फ्रॉम द जेट जीरो emission announced the launch of the world's first hydrogen powered flying boat which is called the jet in Dubai, which is called the United Arab Emirates, which is about the UAE. ठीक है,
ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स मोस्ट पावरफुल हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्थ कोरिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है, सो देयर इज अ मिसाइल ओवर हियर, नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द हवासोंग इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द जैगिंग प्रोविजन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये एरिया के बारे में पूछा जा सकता है, जैगिंग प्रोविजन एरिया। ठीक है, सो नॉर्थ कोरिया सीरीज ऑफ मिसाइल टेस्ट फायर्स इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पोज अ डायरेक्ट एंड सीरियस थ्रेट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 7 तरीके की जो मिसाइल है वो इस महीने लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है दोस्तों वो है निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पहले अनाउंस किया, उसके बाद इकोनॉमिक बजट अनाउंस किया 2022 का। ठीक है, सो इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने आप लोगों को बताया था, इकोनॉमिक जो सर्वे जो रहता है वो 2021-22 का रहता है। ठीक है, मतलब हमारे जो पुराने साल है उसका रहता है, और इकोनॉमिक जो बजट है वो रहता है 2022 और 23 के रिगार्डिंग, जो अगले साल जो न्यू ईयर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना है, 9.27% है। ठीक है, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। CAR T cell therapy which was seen in the news is used to treat which disease। तो CAR में आपको बता दूं कार टी सेल थेरेपी जिसको दोस्तों बोला जाता है, और ये जो कार टी सेल थेरेपी है वो कौन से डिसीज के रिगार्डिंग हमें ट्रीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, कैंसर और डायपेथेरिया, सेकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों कैंसर रहेगा करेक्ट आंसर। अभी ये थेरेपी क्या है एक बार समझ लीजिए। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जिसको बोला जाता है कार टी सेल थेरेपी वर्क्स बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग एन इंडिविजुअल्स टी सेल टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। ठीक है, जो ये कैंसर सेल्स रहते हैं उसके आसपास, यहाँ पर उसके आसपास कुछ प्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे एंटीजेंस रहते हैं जो हमारी बॉडी से ही लिए जाते हैं, उसके भी कुछ प्रोटीन्स इस तरीके के रहते हैं, जो ये प्रोटीन्स हैं ये उसको ग्रैब करते हैं और उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं, और तो पूरा का पूरा जो ये हमारा एंटीजन है उसको कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हमें मदद करता है। सो दैट इज थेरेपी ऑफ द कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टी सेल है, उसकी यहाँ पर 2 पोजीशंस हैं, तो ये उसके जो प्रोटीन्स हैं यहाँ पर उसको लग जाते हैं और यहाँ और उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बाद में ये जो कैंसर के ये पूरा का पूरा जो एक सेल है वो बहुत सारे सेल में डिवाइड होकर इस तरीके का ब्लड बाद में ओरिजिनल ब्लड बन जाता है। सो देयर इज अ कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, सो इन द यूके थेरेपी इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स एंड एडल्ट्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं रिसेंटली of the following state of India wins best state tableau of Republic Day Parade 2022। तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो टेब्लू क्या है, जो हमारी रिपब्लिक डे परेड जो रहती है 26 जैन 2022 को जो हुई थी, वहाँ पर हर एक स्टेट के कल्चर के हिसाब से एक प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द स्टेट टेब्लू। तो वहाँ पर कौन से स्टेट ने उसको विन किया था, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या केरला? सो करेक्ट आंसर इज दी उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तो उसकी जो थीम थी ये इस प्रकार की थी, और ये काशी विश्वनाथ का टेम्पल है। सो द टेब्लू ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिन picked as the best tableau among the 12 states or UTs which participated in the Republic Day Parade on 26 जनवरी। एंड दी उसकी जो टेब्लू की थीम थी वो थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड द काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है, KVD। अ टोटल ऑफ 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। तो उनमें से ये इसको सिलेक्ट किया गया था, और दूसरे नंबर पे था कर्नाटक को सिलेक्ट किया गया था, और तीसरे नंबर पर मेघालय को सिलेक्ट किया गया
है, ठीक है। और कर्नाटक की जो थीम थी, कर्नाटक की थीम थी क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। एंड जो मेघालय थर्ड पोजीशन के ऊपर आया है, उसकी थीम थी मेघालयज 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड एंड इट्स ट्रिब्यूट टू वुमेन लीड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, SHGS, ठीक है। तो उसकी ये थीम थी। तो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला कौन था ये चीज़ याद रखनी है। पहला था यूपी, सेकंड था कर्नाटका एंड थर्ड था मेघालय, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें और उसकी थीम याद रखें फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन बीजिंग ओलंपिक्स 2022 फ्रॉम इंडिया। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले ही बॉयकॉट कर दिया कि वी विल नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस काइंड ऑफ दिस सेरेमनी, ठीक है। पर यहाँ पर भारत देश के तौर पर भारत देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही एथलेटिक जाने वाले हैं। उसका नाम क्या है? तो उसकी ये फोटो है, अगर आप रिमेंबर कर सके। सो उसका जो नाम है वो क्या है? आरिफ खान है, आंचल ठाकुर, नेहा जी नहीं है, फोटो से आप देख सकते हैं, और हिमांशु ठाकुर। तो करेक्ट आंसर इज दी आरिफ खान, ठीक है। तो आरिफ खान बोला जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। सो द 2022 विंटर ओलंपिक्स हैज किक्ड अप ऑन February 4th 22nd बीजिंग चाइना एंड विल कंटिन्यू विल टिल 20 फरवरी, ठीक है। 20 फरवरी तक ये विंटर ओलंपिक्स चलेंगे 2022 के, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। और उसकी जो थीम बीजिंग नेशनल स्टेडियम है उसको कहा जाता है बर्ड्स नेस्ट, ठीक है। बर्ड्स नेस्ट के तौर पर उसको माना जाता है, कहा जाता है। तो इंडिया के जो डिप्लोमेट है उसने बॉयकॉट, इस लेवल को बॉयकॉट कर दिया है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी को। और वहाँ पर एक ही हमारे भाई साहब जाएंगे, एथलेटिक जाएंगे, जिसका नाम है आरिफ खान, और जो स्कीज के माहिर है, ठीक है। स्कीइंग करने में वो अपनी क्षमता रखते हैं, ठीक है। उस वही एक अटेंड करेंगे इस इवेंट को। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। लेट अस मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोटो? That is the most important question asked. It will asked in the examination most probably. But what is the motto of 2022 Winter Olympics and Para Olympics? उसका मोटो क्या है, ठीक है। ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, सस्टेनेबल ग्रोथ, या इंक्लूसिव स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज द टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। सो दैट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इट इज़ ऑल्सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूली रिवाइज टोक्यो ओलंपिक्स मोटो, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को टुगेदर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। ये उसका एक फोटो आप लोग याद रख सकते हैं, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, जो कि बीजिंग 2022 ओलंपिक का मोटो है, ठीक है। ओलंपिक और पैरालंपिक, विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक का मोटो है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीकली करंट अफेयर्स। बिफोर वी कंप्लीशन this session, I want to discuss that if you are targeting this kind of the examination like the CLAT, MH, low CET 3/5 years, SLAT, DU, BHU, LSAT and many more, and if you are targeting the top law colleges in India, so don't worry, batches launched by the Manever Education, where you can get the live classroom coaching, books, shortcut tricks for your examinations and many more doubt solving session where you can solve your doubts with the help of the faculty members. And you can also get the recorded videos for your future, and you can also get the topic wise test, mock tests, and you can also get the WhatsApp group where you can solve your queries and doubts with the help of the faculty members in this kind of the group. You can also get the 10,000 plus question series test for your practice test, and you can also get the mentorship program with the help of the examination mentor. And if you are looking for the classroom coaching at the Mumbai, so we have a 3 centers, Dadar, Borivali and Vasai. So what are you waiting for, guys? Book your seat now and call on 8828581454. You can visit our center also, and you can visit our website which is called the manevereducation.com/law entrance. So thank you and Jai Hind. We will meet in the next lecture, जो हमारा 11 बजे सेशंस रहता है हर दिन, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स जो हम लोग सेशन देते हैं, आई होप आप लोग सारे कल प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। थैंक यू, जय हिंद। वंस अगेन, इफ यू लाइक दी सेशन, प्लीज लाइक, शेयर एंड दी सब्सक्राइब।